everyone. So today we are here to check out the solutions for class 8 mathematics half yearly exams of our school. So let us start with the solutions right away. The first question says the product of two rational numbers is minus 8 by 9. If one of the numbers is minus 4 by 15, find the other number. Now you know the product is minus 8 by 7, minus 8 by 9. This means minus 8 by 9 needs to be divided by minus 4 by 15. And we know that when the divided sign is there with a rational number, then it becomes reciprocal with multiplication sign. So this actually becomes minus 8 by 9 into 15 by minus 4, right? Minus minus sign gets cancelled because we have one minus sign each in the numerator and the denominator. दोनों में हमारे पास minus sign है, तो इसको हम cancel कर देते हैं. यहाँ मिला हमको 2, यहाँ हुआ 3, 5. So the answer that we get over here is 10 by 3. That should be your answer. Now let us move on to question number 2. In question number 2, it says find two rational numbers between minus 2 by 3 and 1 by 4. So you have minus 2 by 3 and you have 1 by 4 over here. अभी इसके बीच में निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, you just keep on adding the numerators and the denominators. So you will have 7 and minus 2 and 1 will be minus 1. अभी फिर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इधर पे minus 2 plus minus 1 is minus 3 by 10. यहाँ इसके बीच में हम इंसर्ट करेंगे minus 4 by 17. यहाँ इसके बीच में हम इंसर्ट कर सकते हैं minus 5 by 13. So you keep on adding the numbers over here. यहाँ हम ऐड कर सकते हैं 0 by 11, so that becomes 0 actually. So उसको भी हम ऐड कर सकते हैं. So any number of rational numbers you can insert given between any of the given numbers that are there. Let us move on quickly to question number 3 over here. So let me try to do this question number 3 over here. It says simplify an exponential form with positive exponent. So the question which is given is minus 3 by 2 whole to the power 3 again whole to the power of minus 2. So you remember जब भी दो पावर्स के बीच में सिर्फ एक ब्रैकेट होता है तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं. So when you multiply them, this becomes minus 3 by 2 whole to the power minus 6. Now remember ये माइनस साइन अभी कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि ये जो है ब्रैकेट के अंदर है. यहाँ हम सिर्फ पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 3 इंटू माइनस 2 विल बिकम माइनस 6. अभी इसको हमको जो है इस पावर को हमको चेंज करना है. तो रिमेंबर वंस अगेन जब हम पावर का साइन चेंज कर रहे होते हैं तो अंदर के कोई भी माइनस प्लस चेंज नहीं होते हैं. ओके सो ये इसका रिवर्स हो जाएगा. तो दिस विल बिकम 2 बाय माइनस 3 होल टू द पावर ऑफ 6. तो ये खाली पावर चेंज हुआ है और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है. दिस टर्न्स इनटू रेसिप्रोकल. I have not changed any signs, only this sign will change. Many students commit this error. जब इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज नहीं हो रहा है. यहाँ पर नंबर्स रेसिप्रोकल हो जाते हैं and the power it changes from negative to positive. So the answer will be this. And of course you can write minus this is also equal to minus 2 by 3 whole to the power 6. माइनस साइन एक न्यूमरेटर जब भी डिनोमिनेटर में होता है तो उसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं. क्यों शिफ्ट कर देते हैं? क्योंकि अगर इसको हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को माइनस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस बिकम्स 3 पॉजिटिव एंड दिस बिकम्स 2 नेगेटिव. और हमें पता है कि जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जब हम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू या रैशनल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है. सो वी कैन राइट दिस एज वेल एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. But this is better because we generally do not keep negative in a rational number. We do not generally put in the negative sign in the denominator. Okay, now let us move on to question number 4 over here. What does question number 4 say? Question number 4 says find 27% of 800. Straight up question. हमने पहले भी बताया है 27% को डायरेक्टली आप
27 by 100 में लिख सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शन दे सकते हैं. So this you will multiply and you will find that 27, when you multiply it by 8, the answer that you get is 236. So that should be your answer. Let us move on to the next question. Question number 5. A number when decreased by 17% becomes this much. Now let us say the number is x, right? You're decreasing it by 17%. That means it will be 17% of x. याद है ना, परसेंट हम straight away fraction में लिखते हैं. 17% of x. It is reduced by itself by its own 17%, right? So this will become equal to 531.2, right? अभी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इसको. This becomes 100x minus 17x by 100 is equal to 531.2, right? कुछ नहीं किया है हमने. यहाँ पर LCM 100 आएगा, उसको x को 100 से मल्टीप्लाई करना है और 17x तो था ही यहाँ ऊपर. So this becomes 83x by 100 is equal to 531.2. अभी ये 100 इधर ले जाने से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा 83x is equal to 53120, राइट? आप मल्टीप्लिकेशन, ये डेसिमल का एक फंडामेंटल है. अभी डेसिमल का एक फंडामेंटल है, ये बताऊं, क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट विल शिफ्ट 2 places ओवर हियर. लेट मी जस्ट यूज अनदर कलर टू शो यू. अब यहाँ पास एक ही प्लेस है, इसीलिए यहाँ हम एक और प्लेस करके द डेसिमल विल नीड टू शिफ्ट 2 places. दैट इज व्हाई it has been written like this and it will become 53120, right? अच्छा, तो हम इसको हटा देते हैं. that was just for an explanation. अभी इसको जब हम डिवाइड करेंगे, so that means यहाँ हमें क्या करना है, अभी x is equal to 53120 by 83. थोड़े थोड़े कैलकुलेशन भी कर लिया करिए आप लोग, तो आपको जो है वो याद रहेगा, आपको इजी लगेगा, राइट? तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो हमको आंसर मिल जाता है. हमको आंसर मिल जाता है इधर पे 640. So 640 is a number when it is decreased by this percent. It will give you this answer. Okay. Now let us move on to question number 6 over here. Let us do question number 6. Oh, many times I am unable to see the cursor, so I have to draw line. Okay, find the discount percent if the marked price is 2700 and the selling price is 2160. Now you see over here, let me shift it a little bit so that it does not get mixed up with this. So here question number 6, marked price is given. Marked price is equal to rupees 2700 and the selling price is given as rupees 2160, right? अब आपको पता है डिस्काउंट क्या होता है. डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट? तो जब हम यहाँ निकालेंगे डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कितना हमको डिस्काउंट मिल रहा है? हमको डिस्काउंट मिल रहा है रुपीज़ 540, राइट? लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा है? डिस्काउंट परसेंट, राइट? तो आपको याद रखना है डिस्काउंट परसेंट भी हम उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं जिस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते थे. So discount percent is equal to discount by marked price into, let me put it over here, just a minute. यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं. तो यहाँ अगर हम निकाल रहे हैं तो you would know discount percent is equal to discount by marked price into 100, right? तो हमें पता है डिस्काउंट कितना है. So this goes to
540 बाय 2700 इंटू 100 आपने काट दिया, यहाँ 20 आ गया, स्ट्रेट अप आपको मिल गया डिस्काउंट इज 20%. सो दैट शुड बी योर आंसर. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What does this next question tell us? Okay, next question says Prachi bought a watch for 350 rupees and sold it for rupees 455. Find the profit. देखो profit परसेंट भी नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे सीधे निकालना है. CP is equal to rupees 350 and SP is equal to rupees 455. Right? तो सीधे सीधे प्रॉफिट आ जाता है. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. तो ये आ जाएगा रुपीज 105. दैट्स दैट. इतना ही करना था, आगे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, लेट अस टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 8. Question number 8 says subtract this from this, right? तो याद है ना, फ्रॉम वाला पार्ट पहले जाता है. सो 7x प्लस 2y माइनस 8z माइनस यहाँ पर आएगा 4x प्लस 6y प्लस 3z. ओके, नाउ you will open up the brackets. 7x plus 2y minus 8z minus 4x minus 6y minus 3z. अभी हम ग्रुपिंग करेंगे सबकी. 7x minus 4x will be what? 3x plus 2y minus 6y will be what? Minus 4y minus 8z minus 3z will be what? Minus 11z. अभी देखो, plus 2 minus 6. What is written over here? I'll just show it to you over here. This is an integers concept. So plus 2 minus 6. यहाँ पर क्या होगा, दोनों का साइन अलग अलग है, तो ऑपरेशन विल बी सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में हमेशा छोटा नंबर बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा और साइन किसका होगा, बड़े भाई का होगा. राइट, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन -4 ओवर हियर. नाउ लेट अस टेक अप व्हाट वाज देयर, -8z minus 3z. राइट, सो वी हैव -8z minus 3z. अभी देखो, दोनों का साइन सेम है, तो मतलब ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन होगा और साइन सेम रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर -11z रखा है. राइट, सो टेक नोट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एज वेल. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको इधर से, हम लोग इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, so that we get place over here. Let us move the board as well over here. Okay, now what we have over here is question number 9. Let us take up question number 9 from over here. Question number 9. Right, question number 9. Now multiply 4x plus 3a into 3x minus 2a. 3x minus 2a. तो आपको क्या करना है, अभी आपको मल्टीप्लाई करना है एक एक करके. 4x into 3x will be what? 12x square plus 3a into 3x will be what? Plus 9ax. अभी 3a के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करना है. Sorry, we multiplied with now -2a से दोनों को मल्टीप्लाई करना है. So we get -8ax minus 6a square. Now you see, there is one minus, there is one plus over here. So minus into plus is always minus. 3 into 2 is 6, a into a is a square. अब हम like terms एक साथ निकाल लेते हैं. So this becomes 12x square minus 6a square. यहाँ पर दो लाइक टर्म्स है, +9 - 8. यू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, +9 - 8. तो इसका मतलब दोनों का साइन अलग अलग है, तो ऑपरेशन विल बी सब्ट्रैक्शन. दैट गिव्स अस 1. तो 1 तो हम लिखते नहीं है, साइन किसका होगा, बड़े भाई का. बड़ा भाई क्या है, 9 है, तो +ax ओवर हियर. दिस विल गिव यू द आंसर. ओके,
Now let us move on to the next question, which is question number 10. Question number 10 says factorize. क्या हमें factorize करना है यहाँ पे? 15x cube y square plus 5x square y minus 20x to the power 4 y cube. अभी हम देखेंगे यहाँ पर 15, 5 और 20. यहाँ पर 5 कॉमन है नंबर्स में. 5 इज द HCF. सबके टेबल 5 के टेबल में सब आते हैं. 15 भी आता है, 5 भी आता है, 20 भी आता है, राइट. सो वी हैव टू फाइंड द HCF. HCF निकालना पता है ना कैसे निकालते हैं? यस. ओके, सो अभी यहाँ पर x भी है, सब में तीनों में x है, तो हम x कॉमन लेते हैं. लेकिन कौन सा वाला कॉमन लेंगे? जो सबसे छोटा x है. यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो हम सबसे छोटा है 2, उसको हम कॉमन लेते हैं. y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो y को भी हम लेते हैं. और सबसे छोटा y कौन सा? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो एक सिंगल y हम यहाँ ले लेते हैं कॉमन. अभी इधर क्या बच गया? 5 से 15 कैसे बनाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई करके. अभी 2 से 3 कैसे बनाएंगे? एक और x ऐड करके. 1 से 2 कैसे बनाएंगे? एक और y ऐड करके, राइट. तो यहाँ आ गया 3xy. अभी 5 और 5 है यहाँ पर, x स्क्वायर है यहाँ पर, y है एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ हम इसको 1 लिख देते हैं. अभी 5 से 20 कैसे बनाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई करके. साइन सेम रहेगा. x स्क्वायर से x टू द पावर 4 कैसे बनाएंगे? 2x ऐड करके. y से y क्यूब कैसे बनाएंगे? 2 पावर ऐड करके. सो दिस विल बी योर आंसर. अभी ये इसको और फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, राइट. सो दिस विल बी द आंसर ओवर हियर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 11, right? So let me check. Question number 11. 11 में क्या है? Again it is a factorization. So factorization में हमें क्या मिला है यहाँ पर? हमें मिला है x into x plus y minus z minus yz, right? तो अभी इसको हमको एक्सपैंड करना पड़ेगा. तो पहले ओपन अप. x into x is x square plus x into y is xy minus xz minus yz, right? तो यहाँ पर ये हम ग्रुपिंग कर देते हैं. यहाँ पर x कॉमन है, तो यहाँ x प्लस y आ गया. यहाँ माइनस z हम लेते हैं, तब हमको x प्लस y मिलेगा. यहाँ हम प्लस z क्यों नहीं ले सकते? अगर हम प्लस z लेंगे तो यहाँ अंदर माइनस x हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, और हमको क्या चाहिए? x प्लस y. दिस शुड बी कॉमन. व्हेन वी आर ग्रुपिंग टर्म्स, देन दिस शुड बी कॉमन. सो द आंसर दैट वी गेट इज x प्लस y into x minus z. This will be your answer. Now let us come up to question number 12 over here. So question number 12 कहता है simplify using identity. तो 102 into 98. Now what is the identity over here? तो जैसे ही आप देखते हैं आपको पता चल जाता है, it can be written as 100 plus 2 into 100 minus 2. ये यहाँ पर आता है. अभी 100 plus 2 into 100 minus 2 को हम और कैसे लिख सकते हैं? You are reminded of the identity a minus b into a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So write the identity as well, so you are never confused. तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है. यहाँ पर a हो गया है क्या? 100. b हो गया है 2. तो हमें लिखना है 100 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. सो दिस कम्स अप टू, व्हाट डज इट कम अप टू? जब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं तो दिस कम्स टू 10,000 माइनस 4, और ये आंसर आ जाता है 9996. दिस विल बी योर आंसर. नाउ लेट अस लुक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फाइंड द स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी. तो यहाँ जब आप देख रहे हैं क्वेश्चन, इसमें है इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आपके बुक में था 2/3 a plus 3/2 b होल स्क्वायर, राइट. दिस वाज द क्वेश्चन. तो आपको इसकी आइडेंटिटी निकालनी है. अभी ये कौन सी आइडेंटिटी में चलेगा? इसकी आइडेंटिटी है a plus b
whole square. A plus b whole square is a square plus b square plus 2ab, right? तो a square, ये this is a, here a क्या है 2/3, this becomes 2/3 a square, sorry 2/3, we will write it that way, 2/3 a whole square plus 3/2 whole b whole square plus 2 into 2/3a into 3/2b, राइट? ये आपका आ जाएगा यहाँ. तो इधर हम इसको लिख सकते हैं 4/9 a square plus 9/4 b square plus, अभी देखो यहाँ 2 into 2 into 3 into 2 है, 3 into 3 cancel, 2 into 2 cancel, 2ab. This will be your answer. Okay, now let us move on to the next part, which is the next question. So we have the questions over here. यहाँ पर हम रखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं so that it is easier for you to see, and let us solve these questions now. So what does this question say? Verify the commutative property of addition for 5/8 and 7/12. अभी commutative property of addition का क्या मतलब होता है? Commutative property of addition means does not matter in which order you add them, but it will be the same. So 5/8 plus 7/-12 should be equal to 7 by 7/-12 plus 5/8. तो यहाँ से हम दोनों तरफ से LHS RHS लेके चलते हैं. So 8, इसमें हम क्या करते हैं, एज आई सेड अर्लियर ऑन, हम जो माइनस साइन है उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. तो ये हो जाता है आपका, यहाँ से माइनस हटा करके हम इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर -7 कर देते हैं. 8 और 12 का LCM होता है 24. 8 3 is 24. This becomes 15 minus 14, क्योंकि 12 2s 24 है तो यहाँ हो जाएगा. अभी इधर अगर हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, अगेन इट इज 24. दिस इज -14 प्लस 15, yes, because it will be 8 3 times 24. So दोनों तरफ अगर हम देखेंगे, 15 minus 14 is also 1/24 and this is also 1/24. That means this is verified. अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिया था इधर, evaluate, and you have to evaluate this part. So let us take this up over here on this side with a different color so that there is no confusion. So evaluate 8/27 to the power of 2/3 divided by 32 to the power of -2/5. राइट? अभी ये जो है, पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो व्हाट डज दिस बिकम ना? दिस बिकम्स 2 to the power 3 by 3 to the power 3 whole to the power of 2/3 divided by 32 becomes 2 to the power 5 whole to the power of -2/5 and this becomes, अभी उनके पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस बिकम्स 2 to the power 2 by 3 to the power 2 divided by 2 to the power of -2. राइट? ये आपको समझ आया क्या हुआ? 3 into 2/3 हमने किया, तो ये 3 यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, इधर दिखा देती हूँ. 3 into 2/3 हमने किया, पावर्स मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ बच गया 2. राइट? और सेम ऐसे ही हमने किया, 5 into -2/5 किया, तो 5 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया -2. राइट? नाउ व्हाट यू हैव ओवर हियर इज 2 divided by 2 to the power of -2. अभी डिवाइडेड बाई 2 to the power of -2, इसका हम अगर पावर चेंज करें, अगर हम इसको यहाँ ले जाए, इसको हम नीचे की तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 2 by 3 to the power 2
डिवाइडेड बाय 1/2 टू द पावर 2। रिमेंबर यहाँ हमने साइन चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ पावर का साइन चेंज किया। पावर का साइन चेंज करने के लिए पूरे नंबर को न्यूमरेटर से हमें डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये दिस बिकम्स लाइक दिस। एंड नाउ व्हेन यू रिवर्स इट, देन आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में डिविजन को रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस बिकम्स 2/2 बाय 3/2, 3 टू पावर 2 इंटू 2 स्क्वायर। सो यहाँ आंसर आ जाता है 2 to the power 4, which is 16/9. So that should be your answer number 3. Sorry, 2. Now let us move on to question number 3. So question number 3 says over here, let me just shift this page a little bit down so that we get more space over here to work out. So question number 3 says over here, I'm using different colors so that different solutions do not mix up. Question number 3 says over here, CP of 14 apples is equal to SP of 12 apples, right? अभी यहाँ पर जो सबसे आसान तरीका होता है, बहुत सारे लोग 100 से लेकर के करते हैं, बट सबसे आसान तरीका जो होता है वो पता है क्या होता है? वो ये होता है, जब भी आपको ऐसे टाइप का सम मिलेगा, सबसे आसान तरीका होता है कि आप दोनों का एलसीएम निकाल लो। 14 और 12 दोनों का एलसीएम निकाल लो कि क्या आता है। तो जब हम 14 और 12 का एलसीएम निकालते हैं, 14 और 12 का, तो हमको मिलता है 84, 276। तो यहाँ हमको एलसीएम मिल जाता है 84। सो अब हम क्या करते हैं, इसी को ही लेकर के चलते हैं। सो हम मान के चलते हैं, लेट CP ऑफ 14 एप्पल्स इज इक्वल टू 84, एंड यहाँ दोनों का जो बराबर आ रहा था उसको हम इक्वेट कर देते हैं, इज इक्वल टू ₹84। सबको बराबर कर दिया हमने। अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमको आएगा CP ऑफ 14 एप्पल्स is equal to ₹84, right? CP of 1 apple will be equal to 84 by 14, that is equal to ₹6। सेम हम SP के साथ करते हैं। SP of 12 apples is equal to ₹84. SP of 1 apple will be 84 by 12, that is equal to ₹7। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि SP जो है वो CP से ज़्यादा है। तो SP जब ज़्यादा होता है तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट वी नो इज इक्वल टू SP माइनस CP। सो दिस कम्स टू ₹1, राइट? 7 रुपये में से 6 रुपये हम निकाल देंगे तो 1 रुपया बचेगा हमारे पास। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट आपको याद है क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट by CP into 100, 1/6। now remember हम 6 ले रहे हैं यहाँ पे, CP into 100। so ये जो जाएगा ये हो जाएगा 50/3, that is equal to 16, 2/3%। that will be your percent gain, right? profit percent। now let us move on to question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर सरका देते हैं सो दैट वी गेट मोर स्पेस एंड वी कैन यूज दिस स्पेस ओवर हियर। इसको और एक्सपैंड भी कर सकते हैं हम। ओके, सो लेट अस शिफ्ट दिस एंड वी कैन चेक आउट द क्वेश्चंस ओवर हियर। सो लेट मी टेक अप अ डिफरेंट पेन वंस अगेन। And question number 4 is, Sheena borrowed ₹7,000 from her friend for 2 years 4 months at the rate of 1.5% per annum. So I'm solving question number 4 over here. So the principal that she borrowed was ₹7,000, right? Time was 2 years 4 months. 2 years 4 months means, now अभी 4 months मतलब क्या हो गया? यहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे जगह में solution I'll keep on some extra bits I'll keep on showing you over here. So 2 years 4 months. 4 months means what? 4 months is equal to 4/12 years, right? That is equal to 1/3 year, right? अभी
यहाँ टाइम है 2 years, 2 and 1/3 years. सो 2 1/3 अगर हम करेंगे तो ये कितना हो गया 7/3 years, राइट. सो टाइम भी हमको मिल गया इधर पे. और हमको क्या निकालना है, रेट भी दिया है हमारे पास. रेट इज इक्वल टू 1.5%. सो 1.5 वी कैन राइट इट एज 15/10%, राइट. अब हम निकाल लेते हैं सीधे सीधे. इंटरेस्ट हम पहले निकालते हैं. सो द फॉर्मूला इज SI इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R/100. सो यहाँ पर P है 7000 इंटू टाइम है 7/3. यहाँ 100 तो रहेगा ही नीचे, तो 3 नीचे आ गया. और रेट है हमारा 15/10. तो ये सब चीज़ें नीचे आ गई. तो 0 0 ये 0 कट गया, ये तीनों 0 यहाँ से चले गए, ये 5. और आप देख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 5 यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा. एंड द वैल्यू फॉर दिस सिंपल इंटरेस्ट इज ₹245. राइट. ये आप जब 49 5 are 245. लेकिन आप याद रखिए यहाँ पर पूछा फाइंड द अमाउंट शी विल पे बैक. इंटरेस्ट खाली निकाल के नहीं छोड़ देना. तो हमें पता है कि अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर. So we will find out this implies amount is equal to principal plus interest. So principal हमें पता था क्या था 7000 plus 245 will make it ₹7245. So this should be your final answer. Okay, now let us check out the next question, which is question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 से सिंप्लीफाई. ये जो सिंप्लीफाई है यहाँ पर एक ये भी था बार दिया हुआ है. तो जो बार इसमें मिसिंग है, तो बार इज एक्चुअली ओवर हियर, राइट. बार यहाँ पर है और यहाँ पर था. सो लेट अस फर्स्ट ओपन अप द ब्रैकेट्स फर्स्ट, द बार ब्रैकेट्स. तो हम पहले ही लिखना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन जब हम लिख रहे हैं. Let us take that up from over here. So we have 4x minus, अभी 3x वाला बार हम ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x plus 5y minus 3 multiplied by 2x minus 3x. अभी याद है आपको, यहाँ बार फिर ओपन हो रहा है तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y, राइट. तो ये हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए. अभी 4x minus 3x, 4x minus 3x क्या होगा x प्लस 5y minus 3 इंटू 2x minus 3x minus 2x, राइट. तो 2x minus 3 ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया -3x प्लस 3y. अब now let us open up this bracket as well. So ये हो गया x प्लस 5y माइनस, रिमेंबर ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है. सो -3 इंटू -3x विल मेक व्हाट +9x. देन -3 इंटू +3y विल मेक व्हाट -3 इंटू +3y विल मेक इट -9y, राइट. तो अभी यहाँ पर जो है ये आ गया. इसके साथ आपका x प्लस 9x विल बिकम, इसका अगर हम आंसर निकालेंगे तो वेयर डिड दैट, आई कीप ऑन मिसिंग ऑन द कर्सर, आई कीप ऑन मिसिंग इट. यस, इज इक्वल टू 10x minus 4y. So that will be your answer over here. Okay, now 2x minus 3x, 2x minus 3x. Okay, 2x minus 3x minus 2x plus 3. Correct. Okay, so now let us move on to question number 6 over here. Let us take up question number 6.
question number 6. Factorize 25a square minus 4b square plus 28bc minus 49c. अभी यहाँ पर एक स्क्वायर होगा 49c स्क्वायर. अभी हम देखेंगे ये वाला पार्ट जो है, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल. सो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है? दिस इज लाइक इफ यू पुट this all of this into bracket, then what happens? This remains 4b square क्योंकि इसको माइनस है. ये बन जाता है माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस साइन किया है तो अंदर के साइन सब चेंज हो जाएंगे. Now if you look at this is 4b square can be represented as 2b whole square. This can be represented as 7c whole square. This can be represented as minus 2 into 2b into 7c. So this is a perfect square trinomial for 2b minus 7c का whole square है. So over here what we do is we write it as, let me just shift it a little bit so that there is place over here. So what we do over here is that we write this can be expressed when we have 25a square. We can write that as 5a whole square minus 2b minus 7c whole square. Now the identity that we are using over here is a square minus b square is equal to a plus b into a minus b, राइट. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? a के बदले आ गया 5a, सो 5a प्लस, तो प्लस में ये वाला पार्ट जो है ये माइनस हो जाएगा, प्लस 2b माइनस 7c इंटू 5a minus 2b plus 7c. So that should be your answer after factorization. Now let us move on to the next part of this, which is question number 7. So let us take up question number 7 over here. Question number 7 is find the measure of each exterior angle and the sum of interior angles of a regular polygon with 15 sides. तो आपको याद है, how do you find the sum of interior angles? Sum of interior angles of a polygon is given by what formula? Is given by the formula 2n minus 4 into 90, right? तो यहाँ पर जो है n is for the sides, तो यहाँ पर हम करते हैं 2 into 15, right? कितने sides हैं इसके? 2 into 15 minus 4, sorry, 2 into 15, 2 into 15 for polygon, yes. So what we will write over here is 2 into 15 minus 4 whole into 90. तो यहाँ पर क्या आ गया? 30 minus 4 is 26 into 90. So यहाँ we will multiply 26 into 90 is equal to, and the calculation after calculation, what you get over here is 2340 degrees, right? So this is the sum of interior angles, but here you are asked to find out the exterior angle as well, तो ये मत भूल जाना. And you know that sum of exterior angles is always equal to 360 degrees. Does not matter what polygon is it. जो भी पॉलीगन हो उसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 डिग्री होगा, और उसकी साइड निकालने के लिए हमको 360 से नंबर ऑफ साइड, उसका एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमको 360 से उसके नंबर ऑफ साइड्स डिवाइड कर देने पड़ेंगे, एंड दैट गिव्स अस 24 डिग्रीज. सो दैट विल बी द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर
7. Now let us take up question number 8 over here. So question number 8 says one angle of a 7-sided polygon is 114 and each of the other angles is x degrees. पहले तो हम निकालें कि इसका sum of interior angles क्या है, right? Sum of interior angles will be equal to 2 into 7 minus 4 into 90, right? तो ये क्या आता है 14 minus 4 is 10 into 90, that is equal to 900 degrees. ये इसका sum of interior angles. अभी यहाँ पर 6 angles हैं जो एक जैसे हैं और एक angle है जो 114 degrees है, and together it is equal to 900. So the next step will be 900 minus 114. So what do you get over here is 6x equals to 786, and then when you divide you get x is equal to 786 by 6, and that is equal to 131 degrees. So each of the other angles will be measuring to 131 degrees. Alright, so now let us move on to the next part, next set of questions which are here. Thank you so much for being patient and watching the solutions over here. Now yes, a certain sum of money amounts to, oh sorry, I think I have skipped on the question over here. This was the next question, sorry. Alright, so let us check out this. Yes, this is our next set of questions. A shopkeeper sold a bag for rupees 990, gaining 1/8 of the cost price. Now let us check out the solution to this. Abhi over here, SP is equal to rupees 990. Can you see that? SP, galti mat karna, sold a bag. So this is 990, and gain is given as 1/8 of CP. Let us say CPB X. Let CPB X. Gain हुआ इतना. Find the cost price and the profit percent. अब क्या है, हमें पता है कि CP plus gain is equal to SP. ये तो मालूम ही है, ये फॉर्मूला. तो इसी को हम अप्लाई करते हैं. तो X plus 1/8x is equal to 990, right? तो इसको हम निकालते हैं कैसे, तो ये फिर आ जाएगा 9x by 8 is equal to 990. This implies 9x is equal to 990 into 8. This implies x is equal to 990 into 8 by 9. अब याद रखना ये स्मार्ट कैलकुलेशंस होते हैं. यहाँ मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, सीधे स्ट्रेट अप यहाँ पे आ गए हम. तो यहाँ क्या आ गया, हम सॉरी 110. सो इससे हमें पता चल जाता है डायरेक्टली CP कम्स टू रुपीज 880. तो जब CP 880 आया तो गेन कितना है, रुपीज 110. अब हमें निकालना है क्या, गेन परसेंट. सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100. हमेशा फॉर्मूले बार बार लिखना जिससे याद हो जाए. सो दिस विल कम अप टू over here when we are talking about so this will come up to 110 by 880 into 100. So this becomes 100 by 8 or 25 by 2. This is 12 1 by 2%. That will be the gain, right? अच्छा, अभी हम next क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इफ द इंटरेस्ट चार्ज फॉर 8 months बी 0.06 times the money borrowed. Now here the actual money is not important. What is important is you have to find the rate, right?
तो यहाँ दिया है उन्होंने, इफ द प्रिंसिपल लेट पी बी इक्वल टू ₹100, तो इंटरेस्ट जो है वो हो जाता है 100 इंटू 0.06, सो दैट इज इक्वल टू ₹6। अभी यहाँ पर है टाइम कितना दिया है, टाइम इज इक्वल टू 8 months। 8 months मीन्स व्हाट, 8 by 12 years, that is equal to 2 by 3 years, राइट। और हमें निकालना है यहाँ पर रेट। रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 बाय P इंटू T। SI कितना था 6 इंटू 100, P कितना था वो भी 100 था, और टाइम कितना था 2/3, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा। जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आता है तो उसका जो तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है दैट गोज इनटू द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन गोज इनटू द न्यूमरेटर। 100 कट गया यहाँ पे 2 3, तो स्ट्रेट अप हमें आंसर मिल जाता है 9%, राइट। सो दिस विल बी योर आंसर। Now let us check out the next question, which is yes, this one. In an annual examination, 41 students failed in English. So English failed is equal to 41%. Science failed is equal to 34%. And both failed is equal to 22%, राइट। अभी यहाँ पर जो है ये हमें वेन डायग्राम काम में आता है। वेन डायग्राम से अगर हम समझेंगे, या ऐसे भी अगर मैं समझाऊँ, तो लेट अस से दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन इंग्लिश, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन साइंस, राइट। टोटल नंबर जो दोनों में फेल हुए हैं, ये बीच का हिस्सा जो दोनों में आ रहा है, ये है 22, राइट। इंग्लिश में कितने फेल हुए, 41, तो 22 तो यहीं कवर हो गए, तो बाकी बचे कितने, 19। सो दैट मीन्स इंग्लिश में 19 बच्चे जो है सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए। साइंस में 34 टोटल फेल हुए, 22 इसमें ऐसे हैं जो कि मैथमेटिक्स में भी फेल हुए, तो यहाँ बच जाते हैं 12। आर यू एबल टू गेट दिस? व्हेन यू आर आस्क्ड टू फाइंड अ लोन, तो इसको हमने कैसे निकाला, इसमें से 22% माइनस कर दिया, इसमें से भी 22% माइनस कर दिया, तो हमको मिल गया ओनली फेल्ड इन इंग्लिश विल बी 19%, ओनली इन इंग्लिश, राइट। एंड हियर दे विल बी 14% ओनली इन साइंस, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। अभी बताना है परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु पास्ड। तो अब ऐड कर दीजिए 19 + 12 + 22 कितना होता है, दिस कम्स टू 53%। मतलब फेल स्टूडेंट्स जो थे वो 53% है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो पास्ट स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंटेज हो जाता है 47%, राइट। अभी एक और निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन, यहाँ लिखा नहीं था, इन बोथ was 220। Now remember हमने सिखाया था कि परसेंटेज और नंबर को कैसे इक्वेट करना है। तो यहाँ बोथ फेल्ड परसेंट कितना है, सो 22% ऑफ स्टूडेंट्स दैट फेल्ड इन बोथ, दिस इज इक्वल टू, ये इज ए परसेंट और ये नंबर बराबर है, इज इक्वल टू 220, राइट। ठीक है, तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं। So total students will be what? Students will be equal to 220 divided by 22%, right? 22% को हम फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं, so this will be 220 into 100 by 22। आपको पता है कि डिविजन में रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ। Now you can get it very easily and you get the answer as 1000. So total number of students was 1000 over here. Total students who appeared, right? Now let us move on to the next part over here, which is factorization.
So factorization, let us take this over here only. Let us shift it a little bit down. So we will be only two sums remain. So we will be able to do them over here. So let us shift it a little bit to the left side then. Okay. Now here factorize. Question number 1 over here. Factorize 9x square minus 24x plus 12. अब यहाँ देखो तीनों में 3 तो कॉमन है, तो 3 तो पहले ही बाहर निकाल दो. तो अभी यहाँ हो गया 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4. अभी ये यहाँ जो है, यहाँ हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल. तो 3 4s are 12. अभी हमको 12 का ऐसा टेबल लेना है, प्लस 12 ऐसा हमको लेना है, ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिससे हमको ऐड करने से माइनस 8 मिले. तो एक तो है 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 4 आएगा. फिर है -1 इंटू माइनस 12 करने से भी हमको 12 मिलेगा, या फिर हमको -2 और -6 करने से हमको भी प्लस 12 मिलेगा. तो यहाँ -2 -6 करने से -8 आ जाता है. तो वी विल टेक दिस फैक्टर. सो 3x स्क्वायर minus 2x minus 6x plus 4. Now you group them together and you have 3. यहाँ पर कॉमन हो गया x, तो यहाँ बच गया 3x minus 2. फिर इधर हमको लेना है -2. So 3x minus 2. ये again we have this one. So the factors will be 3 into 3x minus 2 और ये वाला फैक्टर into x minus 2. So ये factors, this will be complete factorization. Now the next one will be number line पे represent the following numbers on a number line. So if you have not learnt about the number line, you just need to remember इसमें सब बराबर है. यहाँ पर बीच में 0 आता है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पे -2. पहले तो ऐसे ही एक नंबर लाइन बना लेना. अभी देखो यहाँ 7/4 है, राइट. नाउ 7/4 if you turn it into a mixed number it becomes 1/3/4, right. Now 1/3/4 means ये 1 के बियॉन्ड है और प्लस है तो प्लस साइड में होगा. अभी इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये डिनोमिनेटर बताता है. सो वी डिवाइड दिस 1 2 3 and 4 पार्ट्स, और इसमें से 1 के बियॉन्ड आपको थर्ड पार्ट लेना है. सो दिस विल बी अ 7/4. नाउ लेट अस टॉक अबाउट -2/5. -2/5. Now this is a proper number. Here the numerator is less than the denominator. That means it will lie between 0 and -1. तो अब हमको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 5. So we will divide it into 1 2 3 4 5. और इसमें से हमको लेना है सेकेंड वाला पार्ट 1 and 2. So this will be a -2/5. Simple. Okay, now let us move on to the last part, and thank you so much for sticking by for such a long time. We will finish this up fast. Okay, so a certain sum amounts to rupees 9,440 in 3 years and this much in 5 years. अभी यहाँ जो हमें सम देखना है वो ये देखना है कि डिफरेंस इन अमाउंट कितना आया. डिफरेंस इन अमाउंट जो आया, डिफरेंस इन अमाउंट इन 2 years, राइट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. डिफरेंस इन अमाउंट इन 2 years कितना आया है? 10,400 minus 9,440. व्हाट डज इट कम अप टू? कितना आता है? ये आपका आ जाता है 10,444 से 960 rupees 960, right. At times my brain goes into a freeze. So rupees 960. Now याद करो ये जो है 2 साल में ये जो बढ़ गया है अमाउंट, ये क्यों बढ़ा है? This amount has actually increased because of the interest. This is the interest which was gained in 2 years. So interest in 1 year
एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट इन 1 ईयर विल बी इक्वल टू 960/2, दैट इज इक्वल टू ₹480। अभी आप यहाँ याद कीजिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 3 साल में ये इतना अमाउंट हुआ था। दैट मीन्स इंटरेस्ट इन 3 years विल बी हाउ मच? इंटरेस्ट इन 3 years will be equal to 480 480 multiplied by 3, and that comes to 3 8s are 24, 1440। ये 3 साल का इंटरेस्ट है। तो अगर ये इंटरेस्ट हम हटा देंगे इसमें से, सो प्रिंसिपल विल बी अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, ये अमाउंट था, इसमें से हम इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। So this goes on to 9440 minus 1440, that will be equal to ₹8,000। ये तो आ गया आपका प्रिंसिपल। अभी पूछा क्या है? रेट परसेंट। सो रेट निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है। R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। कितना था सिंपल इंटरेस्ट? 480 रुपये। R is equal to 480 into 100 by what was the principal? 8,000 into time 1 year, right? So यहाँ आपने कैंसिल कर दिया, तीनों zeros गए, 6, so rate will be 6%. Simple. Now let us move on to the last few questions that are there over here. So let us shift to this side. सिंप्लीफाई। अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन, एक्स ए बाय एक्स बी टू द पावर ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स बी बाय एक्स सी इंटू टू द पावर ऑफ बी प्लस सी इंटू एक्स c by x a to the power of c by c plus a। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। अब क्या करना है? ये पावर जो दोनों के बाहर है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होते जाएगा। दिस बिकम्स x to the power of a square plus b by x to the power of ab plus b square into x to the power of b square plus bc by x to the power of bc plus c square into x to the power of c square plus ac by x to the power of ac plus c square। अब हमें पता है जब सेम बेसिस होते हैं तो सारे पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो सब पावर्स ऐड अगर हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे बेस तो x रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स टू द पावर ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी, सॉरी इधर होगा बी स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दिस विल बी सी स्क्वायर। अब आप मैच कीजिए दोनों का। ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, ओह यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर यहाँ पर था, यहाँ पर सी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर ऊपर भी है, ए स्क्वायर नीचे भी है, बी ए स्क्वायर प्लस ए बी ऊपर भी है नीचे भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है बी सी सी स्क्वायर ए सी सब कैंसिल होकर के आंसर आ जाता है 1। दैट विल बी द सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2। अभी हमें निकालना है इससे वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 बाय, वी विल स्क्वायर बोथ द साइड्स। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, व्हाट डू वी गेट? x प्लस
1 by x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. यहाँ जाता है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4. आपको याद है ना. तो 2 जब हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो ये प्लस था, ये माइनस हो जाता है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2. अभी इसी से ही लेकर के हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से हमको ये कैलकुलेट करना है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4. तो अगेन व्हाट वी डू इज वी स्क्वायर बोथ द साइड्स and what do we get over here? Once again it is x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 plus 2 equals to 4. और फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे इधर तो अगेन व्हाट वी गेट ओवर हियर इज x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 is equal to 2. तो दोनों का आंसर, ये भी आंसर 2 है, ये भी आंसर 2. Look at the given figure and find the value of the unknown angles. Now यहाँ इसमें figure नहीं दिया हुआ है. I'll draw the figure and I will show it to you how the figure was drawn. So the figure was something like this. ऐसा figure था कुछ, ऐसे कुछ angles बने हुए थे उसमें. I'm sorry, it is not very neat. So this was angle W, this was angle Z, this was angle 80 degrees, this was angle 120 degrees. यहाँ पर था Y, यहाँ पर था X. तो W, X, Y, Z हमको कैलकुलेट करना है. ओके, दिस वाज आल्सो गिवन, दिस वाज गिवन एज 60 degrees. ऑलराइट. सो सबसे पहले हम x लेते हैं. x विल बी इक्वल टू क्या, 60 डिग्रीज, क्योंकि दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. राइट, लीनियर पेयर बनता है ना यहाँ पर. लीनियर पेयर, राइट. So okay, this is okay. So these were the angles given over here, and we have to find the unknown angles, which are x, y, z, and w. W, x, y, z. So x you can see over here. I think the video got stuck someplace. This was the angle that I had drawn earlier on. Okay, so this is you have to find x first. So x will be equal to 60 degrees because 60 plus 120, you write in the bracket linear pair. Right, we just shift it a little bit so that there is a little bit more space. Now look, let us look at y. So where is angle y over here? Y. So if you look at figure y, you see 80, and again this will come up to 100 degrees because again they form a linear pair, right? Now let us look at z. Over here its paired angle is 60 degrees, so z becomes 120 degrees. Same reasoning, linear pair. Now what do we do for w? Let us find out this angle. Let us call this as angle 1. So angle 1 is equal to 360 degrees minus the sum of 120 plus 80 plus 60. Why? Because all the interior angles of a quadrilateral are always 360 degrees. So this will come out to 360 minus, when you add them up, what does it come to? 260. So this is equal to 100 degrees. So over here, this angle, when this angle is 100 degrees, W automatically becomes 80 degrees. With the same logic, they are linear pairs.
So with that, we come to the end of the solution. Thank you so much, everyone, for watching till the end. Take care, everyone. Bye bye, and I hope you got most of the answers correct.